2022ના છેલ્લા સમાપન સત્રમાં આપણે અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છીએ, ત્યારે ભારતીય વિચાર મંચ વતી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. 4 સેશનની આપણી યજ્ઞશાળા હતી આજે, વર્કશોપ અથવા કાર્યશાળા. 3 પૂરા થઈ ગયા અને ચોથા સેશનમાં આપ સૌ અહીં હાજર છો, એટલે એ તો પ્રસ્થાપિત થાય છે કે આપ સૌ કાર્યકર્તા તો છો, જેમના માટે આ કાર્યક્રમ હતો. જે લોકો નથી અથવા થવાના હતા એ લોકો નથી આપણી વચ્ચે, અને એટલા માટે કદાચ આપણા ચોથા સમાપન સત્રનો વિષય પણ એવો જ છે કે કાર્યકર્તાઓ માટે આવનારા 3 વર્ષમાં શું ધ્યાન રાખવું. સત્રની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં જે આપણે આજે આખા દિવસથી સવારથી આ કાર્યક્રમ માણીએ છીએ, આટલા સરસ વક્તાઓ, ચાથી લઈને ભોજન સુધીનું આયોજન, સ્થળોનું આયોજન, આ પાછળ ખૂબ શ્રમ થયો છે. અને એ માટે ભારતીય વિચાર મંચ અમદાવાદ કેન્દ્રના યુવાનો દ્વારા વિશેષ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલા છે આ વિષય ઉપર. અને આજે આ પરિસ્થિતિમાં એમનો પણ આભાર માનવો જોઈએ. એટલા માટે હું કેદારભાઈ દેશમુખને વિનંતી કરું કે તેઓ અમદાવાદના જે યુવાનો છે જેમનું આ કાર્યશાળામાં યોગદાન હતું એમનો આભાર માને. કેદારભાઈ. હા, બધાને નમસ્તે. ભારતીય વિચાર મંચ દ્વારા આજે આ એક દિવસની કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તે માટે મને યાદ છે જ્યારે 1 મહિના પહેલાં ઈશાનભાઈએ ફોન કર્યો કે આપણે આ પ્રકારની એક કાર્યશાળા યોજવા માંગીએ છીએ, તો પહેલી પ્રતિક્રિયા સ્વાભાવિક છે કેવી રીતે થશે. પણ જેમ જેમ ટીમ ભેગી થતી ગઈ, મળતા ગયા લોકો, સંવાદ થતો ગયો, આઈડિયાઝ આવતા ગયા, એમ આ આખું સ્વરૂપ આજે આ વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત થયું. તો એ બદલ હું પહેલાં તો બધી આખી ટીમને આભાર માનું છું. જ્યાં જ્યારે જરૂર પડી એ પ્રમાણે વોટ્સએપ બેઠકોથી માંડીને, ઓનલાઈન બેઠકોથી માંડીને, કાર્યાલય પર મળવું, એએમએ પર બેઠકો કરવી, આપણે બધા કીટ, આપણા પાસે કીટો પણ છે, તો એ કીટ માટેની વ્યવસ્થા કરવી, અન્ય ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ છે નાની. એના માટે હું આખી ટીમને આભાર માનું છું. હું એક કરીને નામ બોલીશ, એ બધા જ કાર્યકર્તાની વિનંતી છે, સ્ટેજ પર આવશે બધા એ કરીને ટીમ વાઇઝ નામ લઉં છું. મંચ ટીમમાંથી ઋષભભાઈ પટેલ, માલવ શાહ, યશ પટવર્ધન. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી બધાનું અભિનંદન કરીએ. હોલ ટીમમાંથી રિતેશભાઈ પટેલ, નિલેશ ત્રિપાઠી, નીરવ જોશી, રવીશ પંચાલ અને ચિન્મય શાહ. રજિસ્ટ્રેશન ટીમ નિનાદભાઈ વાઘેલા, પાર્કભાઈ પંચાલ, નીરવભાઈ જોશી. જેમના કારણે આપણને આટલું સારું ભોજન ઉપલબ્ધ થયું છે એવી ભોજન વિભાગની ટીમ હર્ષ વૈદ્ય, રવિ રાઠોડ અને જનીભાઈ મોદી. જનીલભાઈ અન્ય કામો પણ થયા છે પણ તે ઉલ્લેખ નહીં કરીએ. આઈટી ટીમમાં કિશનભાઈને હું વિનંતી કરી સેવા આવશે સ્ટેજ પર. ક્રિએટિવ મીડિયા ટીમ, જેણે આ આખું ક્રિએટિવ કન્ટેન્ટ ઊભું કર્યું છે, બહાર સેલ્ફી પોઈન્ટ માટે બધું, શ્રી સાક્ષી મહેતા, ક્ષમાબેન કામદાર, નિધિ શાહ અને હાર્દિક ઠક્કર. તો આ આખી ટીમ છે અમદાવાદની. હા, અને સાથે હું આપણા પ્રાંતના મંત્રી ઈશાનભાઈ જોશીને પણ વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવે. હા, ફોટો ક્લિક. જેમના કારણે આખો કાર્યક્રમ આજે આપને વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં દેખાઈ રહ્યો છે. તો ઈશાનભાઈને વિનંતી કરી સેન્ટરમાં ઊભા રહેશે આપની જોડે. હા, બસ એક ફોટો લઈ લો. બધાને વિનંતી કે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. આ બધાનું અભિવાદન કરવા, આભાર માનવા માટે નતા ઉપર બોલાયા. આ લોકોએ જે મહેનત કરી છે સવારથી આપણે બધાએ જોઈ. આવી યુવા કાર્યશાળા આપણા કેન્દ્રમાં પણ આપણે કરવાની છે ભવિષ્યમાં. તો એના માટે આ લોકોએ જે મહેનત કરી છે એ મહેનત આજે આપણે બધાના ધ્યાનમાં આવી હશે, એટલા માટે એ બધાને આપણે અહીંયા બોલાયા હતા.
આભાર તો આ આપણા કામનો ભાગ જ છે, આપણે બધાએ કરવાનું છે, પણ યુવાયામનો આ સૌથી પહેલો કાર્યક્રમ છે. એટલે યુવાયામમાં આ પ્રકારની કાર્યશાળા આયામ બન્યા પછી પહેલી વખત આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આ કામ વધારે આગળ કેવી સારી રીતે વધી શકે તો આ બધા લોકોની મહેનત જે છે એ આપણે ધ્યાને રાખવાની અને આપણા કેન્દ્ર ઉપર આપણે બધાએ ફરીથી પાછી આવીને આવી મહેનત સતત કરતા જ રહેવાનું છે. તો હવે જે વિષય છે એ વિષય પણ આ જ છે કે 2025 સુધી આવી કાર્યશાળાઓ દીપકજી કહેશે કેટલી કરવાની એ રીતે કરતા રહીશું આપણે. ફરી વખત આભાર અમદાવાદ ટીમનો અને ઈશાનભાઈ કીધું એમ ધ્યાન પણ રાખીશું. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ અને છેલ્લા સત્રમાં જઈએ તો હું શ્રી એચ.કે. પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજના વક્તા દીપક શર્માને લઈને મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. आज का जो मुख्य विषय है 2022 से लेकर 2025 तक एक युवा कार्यकर्ता की जवाबदेही क्या हो सकती है अपने कार्य पर या केंद्र पर, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक जी शर्मा आज है. उनका मैं बहुत संक्षिप्त में परिचय देके आपको अवगत करवाऊंगा कि 1983 में गुजरात से इंजीनियरिंग करने के बाद 10 वर्षों तक शासन के विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर उन्होंने कार्य किया. मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट किया. वर्तमान में स्वयं की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का संचालन कर रहे हैं. भारत सरकार के संचार विभाग के सलाहकार समिति के सदस्य हैं. ICCR की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं. वे केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के एकेडमिक काउंसिलिंग के भी सदस्य हैं. मध्य प्रदेश शासन के नीति एवं लोक प्रशासन संस्था के कार्य समिति के सदस्य रहे हैं. अनेकों औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे हैं. अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूक्रेन और चीन ऐसे 15 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु उन्होंने यात्रा भी की है. वर्तमान में वैचारिक क्षेत्र में क्रियाशील प्रज्ञा प्रवाह नामक विचार समूह थिंक टैंक, जिसकी केंद्रीय टोली के आप सम्माननीय सदस्य हैं. मैं श्री दीपक जी शर्मा को विनंती करूंगा कि वो हमें अपने विषय से मार्गदर्शित करें. श्री दीपक जी शर्मा. सबसे पहले तो गुजरात की इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि कोविड के बाद एक ऐसा पहला अवसर मिला कि बड़ी संख्या में युवा दिख रहे हैं, और वो केवल दिख नहीं रहे हैं, वो हिस्सा भी ले रहे हैं. इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं. सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रफुल्ल जी, गुरुप्रसाद जी, हरीश भाई, मुझे लग रहा था कि विषय तो सब समाप्त हो चुके हैं और जितने प्रतिभागी आए हैं वो शायद प्रफुल्ल जी से कुछ और सुनना चाहते हैं. तो प्रफुल्ल जी, ये सत्र भी आपको समर्पित किया जा सकता है. हम सब ने लगभग सारे विषय समझे. सिद्धांततः समझे, पर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होने के कारण एक चीज हमेशा लगती रहती है कि क्लास में जो पढ़ा जाए उसका मॉडल कैसे बनता है, वो चलेगा कैसे, होगा कैसे. कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है तो क्लास में जो कुछ बन रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको हम करेंगे कैसे, वो उसका ऑपरेटिंग पार्ट होता है और संसार उसी से चलता है. सिद्धांत तो आएगा, क्लास में होगा, कार्यशाला होगी, पर कार्यशाला के बाद कार्य कैसे हो, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वो चर्चा शायद कुछ केस स्टडीज के रूप में करेंगे. प्रफुल्ल जी ने स्वाधीनता का संग्राम का जितना विस्तृत तरीके से हम सबके सामने रखा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैसी अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए कि क्या मैं अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने स्थान पर जो मेरा समूह है उसमें क्या मैं प्रफुल्ल केतकर बन सकता हूं.
ये क्षमता विकसित करना होगी। थोड़ा सा निवेदन है कि इसको 22 से 25 कराया, जरा इसको 25 से करीब बियॉन्ड कर लीजिए। 22 से शुरू करेंगे पर आगे कैसे होगा। जब प्रफुल्ल जी पूरी स्वाधीनता की बात कर रहे थे, संग्राम की बात कर रहे थे और मंगल पांडे वगैरह का सारा चित्रण लेके वो आए, उस कालखंड में 1920 के आसपास का एक कोई कालखंड लग रहा है जब कम्युनिस्ट भी बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, और एक ऐसा कोई युवा जो हमारी तरह इस समूह में जैसे बैठे हैं, उनमें से कोई एक MBBS करता हुआ कलकत्ता से आता है और उसके मन में छटपटाहट है, वो भी स्वाधीनता के संग्राम में जैसे युवा लगे थे वो भी लगा है, पर उसको एक और चीज दिख रही कि साथ में कि स्वतंत्र तो हो जाएंगे, स्वाधीनता तो प्राप्त हो जाएगी, पर हम फिर से परतंत्र ना हो, उसके कारण खोजो, उसका रास्ता खोजो। जिस प्रकार का पूरा मूवमेंट चल रहा था वो सब देख रहे थे, कुछ युवाओं का समूह बनता है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यदि ये सब होने वाला है तो अभी तो हमारा संघर्ष ब्रिटिशर से चल रहा है, उनको वापस भेजने का चल रहा है, पर साथ में इस्लामवादियों की भी कुछ गतिविधियां चल रही है। कलकत्ता में नरसंहार हो रहा है, केरल में मोपला हो रहा है, ये सब दिख रहा है। और उसके बाद कुछ समूह के लोग इकट्ठे होते हैं विजयादशमी के दिन 1925 में एक यज्ञ वेदी, राष्ट्र यज्ञ वेदी का निर्माण होता है। आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, यज्ञ। जो राष्ट्र यज्ञ वेदी का निर्माण 1925 में होता है, इसमें समिधा चाहिए, पवित्र लकड़ियां चाहिए, घी की आहुति चाहिए। वो सब मनुष्य के रूप में, युवाओं के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में निकले और 1925 से चलती हुई यात्रा आज अपने 97वें वर्ष में आ गई है। हम शायद 1940, 1950, 1960 में इस प्रकार के समूह में बैठ के बात नहीं कर सकते थे। यदि 1925 में प्रारंभ हुआ और हिंदू नवजागरण का यज्ञ वेदी में लोगों ने अपनी आहुति नहीं दी होती, आज वो यहाँ पर आ गया है। इसीलिए 22 से 25 की बात की जा रही है कि 25 में वो जो एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संकल्प लिया हुआ एक ढांचा खड़ा हुआ, वो उसका मूल में एक हिंदू शक्ति का पुनर्जागरण, उसको संगठित करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना और देश को समृद्धशाली सशक्त बनाना, ये उद्देश्य था। संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता लगती गई, मजदूरों के क्षेत्र में यदि कंट्री फर्स्ट की बात करना है, देश की बात करना है, तो मजदूर संघ आता है। विद्यार्थियों के बीच में आता है तो विद्यार्थी परिषद आती है। शिक्षा के क्षेत्र में आना है तो विद्या भारती आती है। ऐसे अनेकों संगठन आवश्यकता अनुसार बढ़ते गए। इस समूह के गृह में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत एकाध कोई होगा, मेरी उम्र उस समय कम थी। आज ही का दिन 1975 में अखबार जब खोला तो बहुत सारे अखबारों की प्रथम पृष्ठ पे या एडिटोरियल पक्ष खाली था, काला था। रीजन, एक डिक्टेटरशिप खड़ी हुई, उसने अपने त्याग पत्र देने की बजाय भारत में आपातकाल लगाया और विरोध स्वरूप उस समय अखबारों ने अपने पन्ने खाली छोड़े। हम में से बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। उसके बाद का क्या भविष्य होने वाला भारत का पता नहीं। लोगों को जो राष्ट्र के प्रति चिंता करने वाले सारे लोग थे, वो सारी फोर्सेस थी, उनको सबको जेल में डाल दिया गया। किसी को पता नहीं था, बहुत सारे परिवार को, पति का पता नहीं, पत्नी को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं कहां गए। ये लड़ाई सिर्फ 1947 में खत्म नहीं हुई थी, देश तो स्वतंत्र हो गया था। फिर ये क्या हो गया 75 में? और जो कुछ हुआ उसके पीछे फिर वापस देश खड़ा हो सकता है। ये ताकत कहां से आई? कि जो राष्ट्र की ताकत, राष्ट्र को इकट्ठा करने का जो बीड़ा 1925 में उठाया, उसमें से निकले हुए जो परिवार के सदस्य थे, उनमें से कुछ लोग निकल के आए कि नहीं, हमको वापस हमारे उसको प्राप्त करना है। और 77 में हमने तब देखा भारत की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, समाज की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कोई लीडर सामने नहीं दिख रहा था, कोई आदमी नहीं दिख रहा था, कोई फेस सामने नहीं था। और 1977 में उस डिक्टेटर को जनता ने 1 मिनट में पलट दिया। ये भारत की जनता की ताकत है। प्रफुल्ल जी बार बार उस चीज को कह रहे हैं कि वो बिना पढ़ा लिखा है, पर वो चेतना के स्तर पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक बहुत छोटा सा लाइन आती कई बार सुनने में, यूनान और रोमा सब मिट गए जहां से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो हस्ती है ये क्या है? इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो ये हिंदुत्व है, ये हमारे जीवन मूल्य हैं, ये सनातन हैं, ये वैदिक हैं। और एक बात इस पूरे समूह को अंदर से समझ लेना चाहिए कि हमारा जो कुछ था वो अच्छा था। जो कुछ था मान लीजिए उसको हमको परिष्कृत करना होगा तो हम युग के अनुकूल कर लेंगे। दुनिया से प्रश्न ये करना चाहिए कि काले कपड़े, हिजाब, ये सब जो पहन के घूमते हैं वो हमको बताते हैं। हमारी तीन देवियां पुष्टि हैं संसार में जो चला रहे हैं। हमने उस प्रकार की आराधना करी है, उस प्रकार की कल्पना करी है। सरस्वती है तो विद्या की देवी है, दुर्गा है तो शक्ति की देवी है, और संसार को चलाने के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। क्या बात करेगा संसार हमसे? तुमने तो वोटिंग के राइट सभी दिए, तुमने तो माना ही नहीं कि उसमें आत्मा होती है। यह सब चीजों का जब आप अपने अंदर से आत्मविश्वास रखेंगे कि नहीं, मेरे को अपनी चीजों के बारे में रिडिफाइन करना पड़ेगा आज के अनुसार, प्रत्येक युवा इस प्रकार के सोच ले। 1000 लीटर दूध को यदि जमाना चाहिए, दही बनाना है तो इतने से कर्ड की आवश्यकता पड़ती है। उस कर्ड में उतनी ताकत होती है कि वो जमा लेता है। दिस इज आपके पास वो चीज है। आप यदि यहाँ बैठे हुए सब लोग इस प्रकार का विचार कर लेंगे तो वो परिवर्तन आ जाएगा। कितने लोगों को इस हॉल में बैठे हुए लग रहा है कि भारत बदल रहा है? सबको लग रहा है। 1952 में इसी राज्य में सोमनाथ में देश का राष्ट्रपति उसके उद्घाटन के लिए आने के वक्त देश का प्रधानमंत्री उनको मना करता है कि मत जाइए। सरदार की प्रतिज्ञा थी इसलिए वो बन रहा था, भारत की आत्मा थी इसलिए सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था, पर राष्ट्रपति को रोकने का काम प्रधानमंत्री ने किया। राष्ट्रपति उसके बाद डूब गया है। आज के बदलते भारत की यह तस्वीर दिखती है। व्यक्ति कोई भी हो, कहीं का भी हो, आज वो राष्ट्र प्रधान है। वो किसी भी शहर में जाता है तो वहां के मंदिर में जाता है, त्रिकोण लगाता है, पूजा करता है, वस्त्र पहनता है, कभी तुकाराम की खाता है। ये सब क्या दिख रहा है? ये सिंबॉलिक है और ये बताता है कि भारत बदल रहा है। और ये सब उनको बेचैन हो रहे हैं वो लोग। इसी राज्य से देखा था ना, ऊना में कुछ घटना हुई थी, कुछ गायों के कारण कुछ कर दिया था, फिर कुछ एक जगह कहीं चुनाव हो रहे थे तो अवार्ड वापसी का कुछ एक ढोंग रचा गया था। ये सारी की सारी चीजें, उसको नैरेटिव के नाम से कहिए, प्रक्रियात्मक रूप से कहिए, ये बार बार हमारे सबके सामने आएंगी। उसके उत्तर देने के लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जो भी टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म होंगे उन तक उत्तर देना होगा, और सड़कों पर आकर भी उत्तर देना है तो उत्तर देना होगा। परंतु दूसरों में और इस समूह के युवाओं में अंतर है। ये जो समूह है यदि उसको उत्तर देना है तो वो एथेंटिक रिसर्च करके करेगा, बताएगा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये ऐसे हो सकता है, तब सुनी जाएगी बात और वो होगा। 2-3 केस स्टडीज के बताता हूँ। ईशान भाई ने कहा कि मुझे मालूम, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि युवाओं के साथ एक इस प्रकार का प्रयोग प्रज्ञा प्रवाह के युवा आयाम ने मध्य प्रदेश में भोपाल में शुरू किया। उसको यंग थिंकर फोरम नाम दिया, और यंग थिंकर फोरम में हम कुछ गतिविधियां करते हैं, पर वो एकेडमिक गतिविधियां होती हैं मोस्टली। और वो जो कुछ गतिविधियां होती हैं उसका कभी कभी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। हाँ, इसका कुछ परिणाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गुजरात में एवं अन्य राज्यों में हमने डीकॉलोनाइजिंग इन नई माइंड्स ये व्याख्यान करा, सबने पढ़ा, सबने भाग लिया। अब एक एग्जाम्पल है, सारे देश के अंदर स्मार्ट सिटी के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपके यहाँ भी चल रहे होंगे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स। तो प्रदेश की राजधानी में स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट कहता है कि स्ट्रीट का नाम दे दिया बुलेवर्ड स्ट्रीट। अब जिन्होंने यूरोप घूमे करे उनको पता है ये इस प्रकार की स्ट्रीट होती है जिनमें कोई संगीत के करने वाले लोग आते हैं, युवा आता है, हीरू करते हैं, चले जाते हैं, बट इट इज स्ट्रीट। उसके बारे में कहीं चर्चा हुई होगी और कैबिनेट ने उसको कर दिया होगा, ठीक है फाइनल। तो दिस वाज अ थॉट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। पढ़ा, देखा, अपने साथ के जो लोग बैठते थे उनसे कहा कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है। प्रक्रिया बनने में 1.5 साल लगा, सड़क का उद्घाटन होना है। सड़क के उद्घाटन से पहले जिन जिन लोगों को कहना था उनको सबको इनको लोगों को भेजा, बताया,
पार्टी के लोगों को बताया। अंतत्वगत्वा जब चीज ठीक नहीं होती दिखी तो उन युवाओं में से कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब हम बात तो खूब करते हैं, काम नहीं कर पाते, विल डू समथिंग। उन्होंने कहा कम्युनिकेट देम फर्स्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू प्रोटेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम। इट इज नॉट द वेरी नेम ऑफ द स्ट्रीट, इट इज द चेंज ऑफ द मेंटालिटी, व्हाई इट शुड बी ए बेलोवेड स्ट्रीट। यू डोंट हैव द नेम, आपके पास कोई महापुरुष का नाम नहीं। और जहां जहां कह सकते थे, जो व्यवस्था में अपनी रचना थी, उसमें कहने के बाद भी जब नहीं हुआ तो रात्रि में कम्युनिकेशन आता है, आपको बने तो रोकने की कोशिश करी थी। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, मुख्यमंत्री सवेरे उद्घाटन करने आने वाले हैं, एक 50 के लगभग युवा इसी प्रकार के कहीं जुड़े होंगे, वो सब काले कपड़े पहन के, काले झंडे लेके सिर्फ सांकेतिक रूप से खड़े दिखे। पुलिस ने बताया, कम्युनिकेट हुआ। जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपनी होने के बावजूद भी उसकी गंभीरता नहीं समझ रही थी, मंच पर आके मुख्यमंत्री उस सड़क का नाम अटल पथ करते हैं। दिस इज एक्टिविज्म। We have not suggested any name, the mentality and the officer concerned. We have not demanded any complaint or any action against that particular person. Now the second example, हमने नाम नहीं बताया। एक बड़ा फाइट चल रही है, आदिवासी मूल निवासी, एक लंबा डिस्कोर्स चल रहा है, एक शोध संस्थान चलता है। तो युवा आयाम में एक ये व्यवस्था है, तात्कालिक विषयों में कुछ बातें करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा ठोस काम, थोड़ा और रिसर्च का काम। जो स्कॉलर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके साथ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो ये लग रहा है कि ये जो आदिवासी मूल निवासी, ये हमारी कुछ एक फॉल्ट लाइंस हैं। ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, इसमें जो प्रफुल्ल जी ने बताया कि जो दुनिया भर की ताकतें हैं, वो हमारी इन फॉल्ट लाइंस की, समाज के अंदर की जो थोड़ी सी कुछ कमजोरियां हैं, उनको और थोड़ा वाइड करती हैं, ताकि समाज का विघटन हो सके और समाज विखंडित हो तो कमजोर हो। तो वनवासी बंधु यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी नहीं है। यही हुआ, आप सब बाहर से आए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है एकेडमिकली खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई, पर नाम बदल गया, तरीका बदल गया। वो जो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के नाम से बना, उस पर 2-2.5 साल से इस पे काम कर रहे थे, अलग अलग जगह काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी जोड़ रहे थे, रिसर्चर्स बुला रहे थे, एंड उस पर ही ढूंढ रहे थे कि यदि मेघालय के, मणिपुर के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के जो वनवासी हैं, जो आदिवासी शब्द प्रयोग वहां से होता है, जो जनजाति के लोग हैं, इनमें कुछ साम्यता के सूत्र हैं क्या? एंड एक प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करके रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से एक चीज निकाली कि कॉमन चीजें क्या है। बोला नहीं, उनसे पूछा कि आपके यहाँ विवाह में क्या करते हैं? तो जो मणिपुर से आता है और जो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट से आता है, उनमें लगभग सब में एक चीज है कि वो एक देवता को बुलाते हैं और वो पूजा करते हैं, और वो पूजा प्रकृति की करते हैं, पेड़ की करते हैं, पानी की करते हैं। ये मणिपुर और पंचमहाल कहाँ है भाई? ये समानता कैसे आएगी? तो समानता के ऐसे 78 पॉइंट्स ढूंढे अलग अलग जगह से निकल के। सो देयर इज ए कॉमनिटी, कॉमन है। ये पूरी प्रक्रिया करते करते कहा कि भाई इसका कुछ और करना चाहिए। आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस के रूप में सरकार फंड कर रही है, उनका मेले कर रही है, उनको करती। तो जनजाति गौरव दिवस, जनजातियों का अपना खुद का स्वाभिमान, ये जितनी जनजातियां हैं इनको प्रफुल्ल जी ने बताया, इनकी शेड्यूलिंग कर दी। शेड्यूलिंग मतलब आपने एक उनको खाका बना दिया, एक परिशिष्ट बना दिया, उसके अंदर उनको सबको रख दिया। बेसिकली ये जहां जहां हैं वे वहां वहां राजसी हैं, ये सब ताकत से हैं, ये सब में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ये जेनेटिकली बहुत रिच हैं, डिप्राइव नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आसपास सब देखने के बाद ये लगा कि छत्तीसगढ़ में हो नहीं सकता, झारखंड में हो नहीं सकता, जो ज्यादा प्रोमिनेंट इस प्रकार के हैं। मध्य प्रदेश ऐसा है, थोड़ा कंफर्टेबल जगह दिख रही कि जहां पर हम इसको प्रारंभ कर लें। तो जनजाति गौरव दिवस ये शब्द दिया, उसका लोगो दिया, एंड ऑल they have not taken the credit, that संस्थान has not taken the credit, but इस लोगो से लेकर सारा कंटेंट तक बना के वो दिया। और जनजाति गौरव दिवस now it is
अपर हैंड ओवर दी मूल निवासी दिवस। उसी प्रक्रिया में जब प्रधानमंत्री को लगा ये ठीक हो गया, व्यक्ति को आप काम करते रहिए और काम करने के बाद जब आपकी चीजें आएंगी तो समझ में आएगा है इसका एक लार्जर इंटरेस्ट है। वो हमारी जनगणना जो चल रही है उसी से वो जुड़ के भी आएगा विषय कहाँ तक आ रहा है। आपको प्रियम्प्ट करना पड़ेगा। बस इसी काल में एक और चीज होती है, अब यहाँ नाम दिया। हमारे एक नगर का एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम था हबीबगंज। वो देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन था जो प्राइवेट सेक्टर को दिया, और प्राइवेट सेक्टर 30 साल तक उसमें चलाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट जैसा वो बना। उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आना, प्रधानमंत्री ने सहमति दी। अगेन द सेम प्रोसेस हैज बीन अडॉप्टेड, कम्युनिकेटेड एवरीबॉडी हियर एंड देयर, चेंज द नेम because there is nothing like Hibbench. Change the name, but we have given the alternate also. हमने वहाँ अल्टरनेटिव दिया, वहाँ हमको मानसिकता से लड़ना था, बुलेवार्ड स्ट्रीट से लड़ना था। हमने कहा ये जो है ये सिटी की हमारी एंटिटी है, यहाँ पर परमार वंशों का राज रहा है, गौंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, भोज की नगरी रही है, या तो राजा भोज के नाम पे करो या कमलापति के नाम पे, एंड फाइनली कमलापति के नाम पर उसका स्टेशन का नाम हो गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु डिड इट? पॉलिटिकल तरीके से नहीं हुआ, आपने उसकी चर्निंग किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक शोध संस्थान में कुछ लोगों ने करी और आपने इतनी सारी सामग्री उसमें दी रीजन के साथ, वाई। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये परिणाम तक भी ले जाती हैं। हमको सोशल मीडिया पे जहां भी काम कर रहे हैं वो करें, प्रभु जी ने बताया वो नरेटिव नहीं बनते। जरा अपना खुद का मोबाइल कभी विचार करके देखो, व्हाट इज द टाइम यू आर कंज्यूमिंग, आपका खुद का स्क्रीन टाइम कितना है, और उस स्क्रीन टाइम में आप फॉरवर्ड कर रहे हो या खुद की कुछ चीजों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो। यदि टेक्नोलॉजी है तो उसका लाभ है, उस लाभ की तरफ अपने आप को जोड़िए, कुछ अच्छे रिसर्च जहां होती है ऐसी जगह जाइए, कुछ आर्काइव्स में जाइए और अपने सारे के सारे इस प्रकार के जो प्रश्न हों उनके उत्तर खोजिए, फिर उनके मूल कंटेंट में आइए, फिर वास्तविक रूप से उसमें अपना मत बनाइए, दूसरों के मत में मत बहिए, उसमें बहिए अपना खुद का मत बनाइए। ये सब करने के लिए थोड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। तो डेटा दिख रहा था आज इस समूह का, 200 से अधिक लोग हैं, 50% से अधिक संख्या 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। 2030 में भारत की स्थिति ऐसे होने वाली है, 2030 की जनगणना के पास 31 की होगी, पर जो अभी इस प्रकार का मॉडल बनता है उसमें आधी से ज्यादा आबादी भारत की 25 वर्ष से कम आयु की होगी। तो आप कैसा भारत निर्माण करने चाहते हैं, वो ये जो 25 से कम उम्र के लोग बैठे हैं ये निर्माण जैसा करेंगे वैसे आने वाली पीढ़ी उसके पे चलेगी। भारत का भविष्य आप हो, और यह दायित्व है इस बोध के साथ कि मुझे सब कुछ बदल देना है जो खराब है, दुनिया का अपना नहीं, उसमें सब आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मुझे उसको युग के अनुकूल परिवर्तित करना है। नूपुर का एक किसी ने बात करी थी, यहाँ पर जितनी बहनें बैठी वो सब नूपुर जैसी हो सकती है, किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? इसके पहले वाला सत्र था उसमें सिर्फ बॉयज मेल ने प्रश्न क्यों पूछे? क्या जिज्ञासा और कहीं नहीं थी, या भ्रम की स्थिति पुरुषों में ज्यादा होती, ऐसा है क्या? अपनी विरासत तो देखो, मिथ को छोड़ो, विरासत में एक व्यक्ति है वो वृंदावन में मथुरा में युद्ध में बार बार परेशान हो गए, उसने कहा छोड़ो युद्ध, और आता है डाको, उसको रणछोड़ दास का नाम दिया। कोई युद्ध से भाग के आता है उसको नाम देते हैं क्या? रणछोड़ दास के रूप में पूजे। और वही व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में, रण क्षेत्र में
अर्जुन को लेके जाता है, दिखाता है पूरी सेना। और अर्जुन जो पूरी तरीके से युद्ध करने की शक्तियां अर्जित कर रहा था, मिसाइल सीख रहा था, अग्नि अस्त्रों की ट्रेनिंग ले रहा था, वो उस जगह जाके कहता मुझे युद्ध में नहीं लड़ना है, ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, इनको मार के मैं क्या भोगूंगा। तो वो व्यक्ति जिसको रणछोड़ दास कहा, वो स्वयं कहता है एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को दुनिया का दिया गया उपदेश महाउपदेश बन जाता है श्रीमद् भागवत गीता के रूप में। हमें से भागवत गीता किसने पढ़ी है? सब पढ़ें, सब पढ़ें, अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग करें। अब तो वो जिस नगरी में आप बैठे हो उसके पड़ोस में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसके 6th सेमेस्टर में कुछ उसके चैप्टर हैं, द मैनेजमेंट स्किल बाय कृष्णा। दुनिया पढ़ रही है, गीता में वो ज्ञान। एकमात्र स्थिति है, भगवान वहां कहते हैं श्री कृष्ण, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है प्रफुल्ल जी। नूपुर ने जो कहा वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, हो सकता है, पर एकेडमिकली करेक्ट था। एकेडमिकली उसने कहीं से नरेट किया, कई लोग बता चुके हैं ये है, वी डिड इट। हमने इस प्रकार के यूथ्स की कोविड के दौरान इस्लाम को समझो, कुरान को समझो, हदीस को समझो, इस पे कार्यशालाएं करी। पहले 25 लोग, 50, 100 लोग, फिर उसके एडवांस कोर्स करें, पेड 300 रुपया लेके, और एक रिसोर्स पर्सन ढूंढा कि जिसने वास्तव में एथेंटिक तरीके से कुरान निकाली हो, पढ़ी हो, और उनके वो प्रश्नों के समाधान कर सकते हैं। एक सज्जन थे, वो कहीं कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे, उनने अपने इंटरेस्ट से पढ़ी, तो वो तो एक उदाहरण देके रह गई। पर ये जो 40-45 लोग जिन्होंने इस सब पे पढ़ा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, और उसमें से कौन कौन सी चीजें मानवता के लिए अनुचित हैं, उन सब से इन 25-30 लोगों ने, जिन्होंने 1 साल पहले उस कोर्स को करा था, सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा और नए नए उदाहरण निकाल के ला दिए। नूपुर के साथ कुछ नहीं हुआ, सब तन से जुदा, यही था ना। पर किसका? युवा पूछ रहा है किसका करना है, बताइए। दिस इज रिक्वायर्ड। पहली बार थोड़ी हुआ है। एक स्टोरी नहीं, फैक्ट है वो। जुनैद और मंसूर में चेतना जागी। मंसूर को दिखने लगा, ईश्वर से प्रेम हो गया, और उसने उद्घोष कर दिया, अनलहक, अनलहक, अनलहक। अनलहक क्या है? बगदाद में रह रहा है, उसको अनलहक का क्या समझ में आया? अनलहक वही है जो कृष्ण ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि। एक वो व्यक्ति कहता है, और आज तक के इतिहास में किसी भी संत को, किसी भी इस प्रकार के पहुंचे हुए व्यक्ति को इस बेदर्दी से नहीं मारा। सुकारा था, जहर दे दिया, मर गया। जीसस थे, फांसी पे टांगे, चले गए। मंसूर के साथ ऐसा नहीं हुआ। खलीफा तक खबर पहुंची, ये कुफ्र है, खुद को खुदा कहता है। संदेश पहुंचाए, उसके गुरु को कहा इसको रोको, 4-4, 5-5, 10-10 हजार लोगों की भीड़ इसके साथ घूम रही है और ये अनलहक का नारा लगा रहा है। वो कहता है मैं नहीं लगा रहा, जो अंदर है वो बोल रहा है, मैं कैसे रोकूं? अंतत तो कर मरना था, गिरफ्तार कर लिया, कहा अब माफी मांग लो। उसने कहा किससे, किसकी माफी?
नहीं, पैर काट दिए, हाथ काट दिए। जब जवान काटने आए तो उसने कहा एक बार फिर से बोलूं फिर मेरी जवान नहीं रहेगी। हंस रहा है। फिर उसने कहा अनला, जवान काट दी। पत्थर मारे जा रहे थे, सब लोगों ने पत्थर मारे। उसका वो गुरु जो ये जानता था कि ये सही है, वो भी आया। उसने एक फूल मारा। उसको लग रहा था लोग ऐसा ना कहें कि मैंने कुछ मारा नहीं, तो लोगों को दिखाने के लिए उसने ऐसा कुछ फेंका, पर फूल। जो मंसूर हंस रहा था पत्थर मारने पर, फूल मारने पर रोया। जुनैद ने उससे पूछा क्या हुआ? बोले ये तो सब नासमझ है, इनको तो पता नहीं है, पर तुझको तो पता है कि मैं कौन हूं। अनला। तो उनके लिए जो आज दुनिया में ये सब काट रहे हैं, उनको क्या है? उसका उत्तर है, यहां हर व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं नर से नारायण बन सकता हूं। ये हमारा आधार है, ये हमारा हिंदुत्व है। यहां नर से नारायण बनने की कर्म से व्यवस्था है। अपने अंदर की चेतना को जागृत कीजिए। पूरे दुनिया का उत्तर है हमारे पास। भारत के बारे में कभी भी किसी भी दिन सवेरे उठ के जरा देखिए, आसपास जो कुछ घट रहा है, भारत उसमें कहाँ है? बहुत शांत है। आप अंदर से देखिए उसको। ऊपर की छोटी मोटी घटनाएं दिखती नहीं। अभी आज के पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, जब इन सब जगह देखेंगे पूरा यूरोप परेशान है इस्लाम से। लंदन की सड़कों पे जुमे की नमाज सड़कों पे हो रही है। दे डोंट हैव द सॉल्यूशन, यू हैव। हमने उनका अध्ययन नहीं किया, उनको उनकी भाषा में एकेडमिकली जवाब नहीं दिया। जरा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जितने लोग हैं, जरा देख के सोच के देखिए, एक्स मुस्लिम की कितनी बड़ी संख्या आ रही है। कोई हम उनको प्रेरित कर रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि ये परिवर्तन होना है। यदि सऊदी अरब का सुल्तान अपने पिता को ये समझाने के लिए तैयार है कि हम नहीं रोकेंगे तो हमारी बच्चियां, हमारे युवा हमारा साथ छोड़ देंगे, ये सारी ताकत इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से आ गई है। बंद पड़े हुए सिनेमाघर खोल दिए, बच्चियों को लाइसेंस दे दिए गाड़ी चलाने के, सरकारी नौकरियों में काम करने की इजाजत। ये सिर्फ पिछले 2 साल के परिवर्तन हैं। कहाँ हो रहे हैं? सऊदी अरब में। व्हाट इज दिस? व्हाई इज दिस? अपने आसपास इन सब चीजों को देखिए। यदि वसीम रज़वी कहीं से निकल के आता है तो बदल देता है, अली अकबर कहीं से निकल के आता है, बदल देता है। इस्लाम के पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय काटने की। वो पॉलिटिकल इस्लाम है, कोई रिलीजन है, करुणा है क्या, भक्ति है क्या, मनुष्य के कल्याण की बात है क्या? सबसे खोखला विचार है। आप खड़े तो होइए, एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। इसी की छटपटाहट है। परंतु इस्लाम और मुसलमानों को अंतर समझिए। भारत की स्थिति उससे भिन्न है। हमको हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, मुल्ला मौलवी, इनको अलग करिए। जो आम मुसलमान है उसके अंदर घबराहट है। थोड़ा सा कुरेदिए तो पता चलेगा, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पीढ़ी में वो कहता है कि नहीं, मेरे दादा मेरे परदादा हिंदू थे। बदलने की तैयारी है। बचाने का काम किसको करना है? किसको करना है? डच सुने आपने? दिखते हैं कहीं? हूंद आए थे, दिखते हैं कहीं? शक दिखते हैं कहीं? नहीं, गए, पचा लिए। हमारी क्षमता वही है, हम में वो ताकत है। थोड़ा सा अपना ये खोल के रखिए कि वो भी हमारे भाई बंद हैं। उनको 3 चीजों से अलग कर दीजिए, उनको बता दीजिए, उनको डर खत्म कर दीजिए। और इस कैटेगरी को जो अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, उसको अलग करिए। एकेडमिकली समझिए, उनके ऑपरेटिव मॉडल्स को समझिए। बच्चियों में परिवर्तन है 3 तलाक के कारण। महसूस करते हैं, राइट्स के बारे में सोचते हैं,
और अब आने वाले समय के लिए पहले से तैयार रहिए। कॉमन सिविल कोड इज द न्यू एरिया इन विच वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। आने वाला आएगा परिवर्तन, लगता है सीए होगा। हम रुकेंगे थोड़ी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, हो सकता है आज एक मोदी नाम के कोई व्यक्ति दिखते, कल योगी नाम के आएंगे, परसों कोई और किसी नाम के आएंगे, पर ये भारत का अभ्युदय, ये दुनिया की नीड है। दुनिया के लोगों ने अभी नहीं पहले से भारत के बारे में क्या किया, भारत मतलब भारत के विचार के बारे में क्या क्या कहा, उसको समझने की आवश्यकता है। ढूंढिए, मिलेगा, बहुत सारी जगह मिलेगा। आइंस्टीन क्या कह रहा है? यदि वो एक रिकॉर्डिंग के किसी उसके लिए एक आविष्कार के लिए एस्थेटिक सोसाइटी में जब जाता है तो मंच पे आके उसको कहा जाता है कि आप आइए, आज एक नया आविष्कार है। तो मंच पे आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक ऐसा आविष्कार किया है कि जो आप बोलोगे, आपकी वाणी जो है वो अब अनंत काल तक अमर हो जाएगी। आज की पीढ़ी, हम लोगों को तो लगता है कि जो बोला है वो तो सबके सही सब जगह उपलब्ध है, परंतु उस काल में जब वॉइस रिकॉर्ड का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई आविष्कार नहीं था, जब आविष्कार करके लाया तो आइंस्टाइन वाज सिटिंग इन फ्रंट इन द एरिया। 2000 से अधिक साइंटिस्ट दुनिया के उस एस्थेटिक सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में थे, 2000 से अधिक। भोजन के सत्र के पहले वो आते हैं, मंच पर आए और उन्होंने अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाए और आइंस्टीन से कहा आप कुछ बोलिए। आइंस्टीन ने कुछ बोला, बोलने के बाद आइंस्टीन चले गए। उन्होंने कहा मुझे जरा लंच के बाद मैं आपको ये अपना प्रयोग सिद्ध करके दिखाऊंगा। लंच के बाद आए और जो आइंस्टीन ने बोला था वो उन्होंने लगाया और सुना दिया। लोगों ने खड़े होकर, पूरे 2000 वैज्ञानिकों ने ताली बजाई कि दिस इज व्हाट इन्वेंशन, कि मनुष्य की आवाज जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गई। आइंस्टीन के उसने कहा आप लोगों ने ताली बजाई कि एक बहुत बढ़िया आविष्कार हुआ है, पर जरा ताली इस पे बजाइए कि मैंने कहा क्या है। आइंस्टीन, एन इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरी जो अनंत काल तक रहने वाली है। आइंस्टीन ने कहा मैंने ऋग्वेद का पहला श्लोक बोला है। ऋग्वेद का जो पहला श्लोक है वो दुनिया के ज्ञान का श्लोक है। आंखें खुलती हो, हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है। अग्नि विलय पुरोहिता, ये शब्द है। ये भारत की ज्ञान है, ये भारत की परंपरा है, उसको तो खोजिए। अपने लिए कुछ चीजों के बारे में विचार कर लीजिए। Who am I? ये रोज पूछिए अपने आप से, जब तक आपको अपना उत्तर ना मिल जाए। और जिस दिन ये उत्तर मिल जाए, आई एम भारत, आई एम भारत, उस दिन मैदान में उतर जाइए। अपने आप को पूछिए, Who am I? मैं कौन हूं? और यदि अंदर से उत्तर मिल जाए कि हम ब्रह्मास्मि, तो उतर जाइए मैदान में। आपको सारे परिवर्तन करने की ताकत ईश्वर ने प्रदान कर दी। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास इस प्रकार से उपलब्ध हैं। ज्ञान लीजिए जहां जहां से मिले, परिष्कृत कीजिए, अपने रूप से उसको ढालिए, पर उसको क्रिया में भी उतारिए। अकेला ज्ञान रह जाने से भी काम नहीं चलेगा, उसको क्रिया में उतारना पड़ेगा। उसके अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, खड़े करने पड़ेंगे। हमारी एक उस टीम ने कुछ काम शुरू करें, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट, IIT, IIMs ऐसे पकड़े हैं। उनका देश की जो इंटेलेक्ट वर्ग है ऐसा वहाँ जाते हैं, उनके बीच में जाके बात करते हैं। समूह सप्ताह में बैठता है, यंग लोग हैं, नाम लिया, रजिस्टर करा, संस्था बनाई। रीडिंग क्लब्स, ऐसा नहीं, एक बच्ची और एक बालक 2 पुस्तकों पे अध्ययन करते हैं। आधा घंटे विषय रखते हैं, दूसरा आधा घंटा विषय रखता है, और बाकी लोग उसमें सुनते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। अभी तक 80 से ज्यादा देश विदेश की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है। एंड 2 लोग तैयारी करके आते हैं, पर उससे 40 लोग कुछ लेके जाते हैं, एंड दे डिसिमिनेट इट। ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। एक बार सिर्फ इनिशिएट करने का काम किया। YTF वार्ता, आप कोई भी कंकरेंट विषय उठाइए,
उस पर तैयार करके आएंगे, उनको बताना और पड़ता है कि हाँ भाई आज का विषय क्या है अगले गुरुवार का। यू विल सरप्राइज। मुझे भी कुछ पता लगा कि यार ये लोग कितनी मेहनत करके आते हैं। सबने आपने सुना होगा ना कि जैसे ही एक बढ़िया सा चीज शुरू हुई थी कि बनारस में कुछ महिलाओं ने मांग करी कि हमको श्रृंगार गौरी के दर्शन करना है, कितना अच्छा लगा था। और वो चीजें वहां के कोर्ट में गई, कोर्ट ने सर्वे करा, सर्वे से चीज एकदम से अच्छा, जिसको आप नरेटिव कहते हैं, तो ये लग रहा था कि ये काशी से आया, मथुरा में भी कुछ हलचल होने लगी और आपकी दिल्ली भी पहुंच गया, कुतुब मीनार के बारे में भी कुछ चल रही। सो एंटायर कंट्री वाज इन दी under the same thing. Wow, what is happening? And it is going to be in all the mandir of the country. फिर किसी ने रोका, भाई थोड़ा रुको, हर जगह पर रुको, प्रमुख जगह हो जाए। बट एक व्यक्ति ने उसने कहा, हैदराबाद का सुल्तान, तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है। एंड द सरप्राइज, हमने उसी दिन वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में 3 लोगों से कहा था तैयारी करके आना। वो पूरा बाकायदा लेके आए, किताबों को ढूंढ के लाए, कहाँ का क्या क्या प्रोविजन है, सब कुछ रखा, सब कुछ बताया, सबका ज्ञान वर्धन हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज गुरु फ्रॉम NLL भोपाल, he came and he gave us different dimension to that entire discussion gone into other direction. He told 1991 में जब ये आया था तब 3 बातों के कारण नरसिम्हा राव जी इसको ला रहे थे। बात हो रही थी मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष के सब लोगों को बैठा के बात करी कि अयोध्या मथुरा काशी दे दो, बाकी सब छोड़ देंगे। ये उसका मजनून था, परंतु वो पक्ष जो है वो मुल्ला मौलवियों के कारण हट गया, तो अकेला उसमें अयोध्या रह गया, 2 छूट गए। What he told कि 1991 में ये आने के बाद इसका पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। 1991 से लेकर आज कितना समय हो गया, सिर्फ 2 साल पहले एक सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई एक वकील साहब हैं, उन्होंने PIL लगाई और गई 4 PIL कुल। और इस पूरे पीरियड में भारत की संसद में किसी भी सांसद ने उस बिल पर बात करने की, पुनर्विचार करने की, हटाने की मांग नहीं करी। What is the kind of democracy or the polity we have? Then the same student gave another point. CAA के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक PIL लगी। 4 लगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में PIL, 200 से अधिक PIL लगी CAA के बारे में। कहां पर एक्टिविज्म है, कौन ज्यादा चिंता कर रहा है, किसको करना है? आप सिर्फ पॉलिटिशियंस पे डिपेंड मत रहिए, वो तो कह के छूट जाएंगे, पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट। देश अपना है, देश अपना। ऐसी खोज करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा लोगों को कि करिए। ऐसी बहुत सारे विषय नहीं है, हमारी तैयारी चाहिए, हमको प्रियम्प्ट करना पड़ेगा। सिर्फ रिएक्शन नहीं देना है, कुछ हो गया तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं, हमको तैयारी करना है, आगे बढ़ के देना है। वो सब होगा, वो सब कर सकते हैं। क्वाइट हुआ, कोई सब हमको वास्ता नहीं क्वाइट से, पर एक चीज हो रही है क्वाइट, इधर यूक्रेन और ये लड़ रहे हैं। व्हाट इज क्वाइट? वी मस्ट अंडरस्टैंड। अब हम ग्लोबल उसमें हैं, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, उसका दुनिया की चीजों में क्या समझ में आता है, अटपटा सा लगता है। एक तरफ लड़ रहे हो, इधर आके क्वाइट में आगे चीन से बात करोगे, ब्रिक्स में जाके बात करोगे। ये सारी चीज़ों के बारे में, सारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखते रहो, अपने आसपास समझते रहो और अपनी भूमिका का निर्धारण करो। ये जिम्मेदारी भारत की है, हम सब उसके अवयव हैं और सब नई पीढ़ी को करके दे देना है। और जब हम ये 2-3 साल की बात कर रहे हैं, ये शताब्दी वर्ष का है। ये शताब्दी वर्ष में थोड़ी सी ताकत लगेगी। 1925 में जो शुरू हुआ, एक राष्ट्र के पुनर्जागरण का एक आंदोलन के रूप में जो शुरू हुआ, उसका एक अलग प्रकार का चित्रण हमको सबको दिखता है और वो वैश्विक रूप से उसको दिखता है, उसकी स्वीकार्यता दिखती है। प्रफुल्ल जी ने एक बात कही थी कि वो तो चले गए 1947 में, 18 मई 2014 लंदन से निकलने वाला गार्डियन, दी गार्डियन, पहला पेज एडिटोरियल लंदन से निकल रहा है। इंडिया अनदर ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी।
ये उसकी हेडिंग है। एडिटोरियल क्या कह रहा है कि फाइनली ब्रिटेन हैज टू लीव इंडिया। अभी नरेंद्र मोदी ने शपथ नहीं ली 2014 में, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नरेंद्र मोदी, वो अपने आर्टिकल में लिख रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नरेंद्र मोदी, इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, इट इज बिकॉज ऑफ द इंडियननेस, इट इज बिकॉज ऑफ द हिंदुत्व, द चेंज हैज कम। ये जो परिवर्तन 1914 में 18 मई की गार्डियन में लिखा जा रहा है, तब तक आप ब्रिटिश ही थे। नाउ फाइनली ब्रिटेन हैज टू लीव इंडिया। ये दुनिया देख रही है और ये परिवर्तन की धारा बहुत तेज है, बढ़ेगी। बार बार इसको मैं महसूस करता हूँ, ये बढ़ेगी क्योंकि जाग गया है, जाग गई तरुणाई एक गीत है। तो तैयार रहिए, जिम्मेदारी बहुत आ रही है, जिम्मेदारी आ रही तो क्वालिटेटिव काम करना पड़ेगा और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है क्योंकि वो यहाँ पर असर डालता है। एक छोटी सी कहीं घटना होती है और वो सारा कुछ बदल देता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये एक कंसल्टिंग पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है ब्रिटेन की, उसने मनुष्य के व्यवहार को समझा है। समझते हैं, मार्केटिंग में बहुत सारे लोग देखते होंगे, समझते होंगे आपका बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, आप क्या क्या चीजें करते हैं। आप यदि रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो आपके पास होटलों की बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, आप पास टैक्सियों की लिस्ट आ जाती है, आप कपड़े खरीदने के लिए कुछ ढूंढते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स पंपिंग इन योर हैंड। ये जो सब कुछ चल रहा है, ये इसके सर्वर कहीं और है, ये सारी चीजें फेंक रहे हैं। डेटा का बहुत बड़ा, जिसके पास डेटा और डेटा को एनालाइज करने की ताकत है, वो मस्तिष्क पर रूल कर रहा है, वो आपके विचारों को बदल रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका भी इसी प्रकार की पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी, उसने बहुत सारे देशों के चुनाव में कुछ परिवर्तन करा। एक छोटी सी घटना होती है, एक पुलिस वाला खड़ा है, एक व्यक्ति अपराधी दौड़ के आता है और उसको पकड़ के दबा देता है, उसके घुटने से दबा देता है, वो मर जाता है। दी फोर्सेस कहती है ब्लैक लाइफ मैटर्स। एक अपराधी है, एक पुलिस वाला है, पर चूंकि अमेरिका की जो एक फॉल्ट लाइन है वो रेसिज्म है, काले और गोरों का भेद है, और उसका ठप्पा लगा देते हैं ट्रंप पर और अंततोगत्वा स्थिति दिखती है। ये ब्लैक लाइफ मैटर्स प्रफुल्ल जी सिर्फ 18 दिन में भारत की तहसील में भी सुनाई दे रहा था, ब्लैक लाइफ मैटर्स, ब्लैक लाइफ मैटर्स, ब्लैक लाइफ मैटर्स, एंड दिस इज इन द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया भर में ब्लैक लाइफ मैटर्स हो गया। ये जो इकोसिस्टम, ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन? उनका एक छोटा सा, उनको आप लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, ये अलग विषय है, पर इनकी एकमात्र यदि कोई चीज है एनार्की। ये अराजकता फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। ये कोई भी एक सिस्टम को नॉर्मली अच्छा प्रोग्रेसिव तरीके से चलने देना नहीं चाहते। जो व्यवस्था चल रही है अच्छे डायरेक्शन में, उसको नहीं चलने देना चाहते, उसमें अराजकता पैदा करते हैं। और ये हर जगह लोग मिलेंगे। आप सबसे एक ही चीज का निवेदन है, जब भी कोई घटना घटे, जब भी कोई समाचार पढ़ें, जब भी कुछ देखें, किसी का कथन सुने, तो उसमें एक लाइन से दिमाग में डाल दीजिए, ये भारत के हित में है या नहीं, ये भारत को जोड़ने के लिए है या नहीं। यदि उत्तर नहीं है तो मान के चलिए कि ये फैब्रिकेटेड है। और हर वो कृत्य जो देश को कमजोर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसका उत्तर जिस तरीके से दिया जा सकता दीजिए। भारत का और दुनिया का नवनिर्माण हमको करना है। धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा समृद्ध करने वाले इस व्याख्यान के लिए दीपक जी का पुनः आभार। मैं श्री हरीश जी को विनंती करूंगा कि मोमेंटो देके दीपक जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम की आभार विधि के लिए मैं श्री हरीश भाई पटेल को विनंती करूंगा कि आप आभार विधि करें। नमस्कार। अंतिम सत्र में इतनी ज्यादा संख्या तो अपने आप आभार हो गया। युवा की डेफिनेशन अभी एक दिन हमको सुबह सुबह मिली। संघ के सहसारिक प्रमुख जितेंद्र प्रसाद जी आए थे, पूरा नगर का एकत्रीकरण था। संघ में सुबह प्रहार लगवाते हैं,
सबको बोला प्रहार लगाओ, अपना मोबाइल चालू कर दिया और गिनने लगे। गिनती के बाद सबसे ज्यादा प्रहार 51 लगे 1 मिनट में। फिर उसने व्याख्या दी युवा कौन है। उस व्याख्या में उसने बताया कि जो 1 मिनट में 60 प्रहार लगाए वो युवा की डेफिनेशन में आते हैं। और उस जगह जो हाजिर थे उसमें लगभग 90% लोग 25 से नीचे वाले थे। यहाँ की परिप्रेक्ष्य में देखे तो प्रफुल्ल जी ने, गुरु प्रकाश जी ने और अंतिम दीपक जी ने 1 मिनट में 120 से भी ज़्यादा प्रहार लगा दिए। अभी हमको प्रूव करना है कि हम कितने लगा सकते हैं, तभी जाके इस यज्ञ कार्यशाला का कुछ निकलेगा। कहते हैं कि सावरकर जी जब यहाँ से जहाज में बैठ के लंदन की ओर प्रयाण कर रहे थे तो उस जहाज में यहाँ के प्रवास शुरू हुआ। वहाँ से जब प्रवास खत्म हुआ, लंदन पहुंचे, तब तक में 12 कार्यकर्ता वो अपने साथ जुड़ चुके थे। उसका जो मिशन अभियान था, हमारा काम भी वही है, हमको कार्यकर्ता को जोड़ना है। और उस कार्यकर्ता 1 मिनट में 120 प्रहार लगाए तो इस कार्यक्रम की फलश्रुति सारा आभार। तो जितने कार्यकर्ता, यहाँ एक लंबी लाइन लगाई थी अहमदाबाद के कार्यकर्ताओं की। सर ने बताया था कॉन्फ्रेंस में, आज भी वो फोटो चलता है, जितने भी साइंस से जुड़े लोगों को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड की कॉन्फ्रेंस के। अब जब 100 साल मना रहे स्वतंत्रता के, उस समय यहाँ की एक आध फोटो लग जाए तो हमारा ये जो आभार है वो बड़ा परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि नहीं ये सही है। तो सभी वक्ताओं का आभार, जो भी व्यवस्था के भाग में रहे उसका आभार, कार्यकर्ता जो मन से जुड़े। और 3 साल का दिया है दीपक जी, 22 से 25 तक का। 3 साल नहीं, 2050 में उस स्थिति में हो जिसका बीज बोया जाता। फर्क 8 साल में दिखने लगे हैं। 50 आते आते हमारी जो कल्पना है उस कल्पना के अनुरूप कुछ हो जाए और उसमें हमारा कोई रोल हो, छोटा सा छोटा रोल भी हो, तो इस यज्ञ की कार्यशाला की सफलता हो। अंत में सारी टीम का, AMA का, व्यवस्था में जो भी जुड़े हैं सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए 2025 में कुछ कार्यशाला हो, मेरी जगह आभार विधि के लिए दूसरा कोई आए और वो टाइम पे 1000 युवा सामने बैठे हो, ऐसा मेरा मंतव्य है। अभी ये कार्यशाला की सफलता है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कार्यशाला हो उसकी सफलता कार्यक्रम होने से नहीं होती है, जिस चीज के लिए वो कार्यशाला की उसकी शुरुआत है उसकी सफलता कब होगी तो 2, 4, 5, 10 साल का समान सामने है। धन्यवाद सभी। આભાર હરેશભાઈ. થોડી સૂચનાઓ પર ધ્યાન આપીશું. ભારતીય દ્રષ્ટિકોણથી અધ્યયન અને શોધ કાર્યમાં જેમને રસ હોય અને સમય કાઢીને જેમાં જોડાઈ શકતા હોય, અચ્છા જેમની ઈચ્છા હોય એવા યુવાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય પછી મંચની જમણી બાજુ એકત્રિત થશે. ક્લોક રૂમમાં જે લોકોનો સામાન છે એ લોકો સામાન લઈ શકે છે. હાઈટીની વ્યવસ્થા પણ કરેલી છે. આપ સૌને નિવેદન છે કે કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યારબાદ આપ હાઈટી લઈને છૂટા થઈશું. ભારતીય વિચાર મંચના સોશિયલ મીડિયાની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, જેમાં ફેસબુક પર ભારતીય વિચાર મંચ, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આપણી પોતાની વેબસાઇટ પણ છે અને યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે. જે યુવાનો આ વસ્તુથી અવગત ન હોય એ લોકો ફરી વખત આ દરેક પ્લેટફોર્મ ઉપર સર્ચ કરીને ભારતીય વિચાર મંચ સાથે જોડાઈ શકે છે. વિષય સૂચના અમદાવાદ માટે રહેશે, અન્ય લોકો સાંભળી શકે છે, ભાગ અમદાવાદ લેશે. ભારતીય વિચાર મંચ અમદાવાદ અને एवं सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज एंड इंडस यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम एवं व्याख्यान, पुस्तक का टाइटल और व्याख्यान दोनों है महाराणा अ 1000 ईयर वॉर ऑफ धर्मा. उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अहमदाबाद वाले लोग. उसके लेखक जो है श्री ओमेंद्र रत्नो जी, वो उसमें व्याख्यान देंगे जो कि 2 जुलाई शनिवार शाम 6:30
6 को होने वाला है, जिसका स्थल रहेगा HT पारेख कन्वेंशन सेंटर, AMA परिषद, डॉक्टर विक्रम साराभाई मार्ग, वस्त्रापुर, अमदावाद। હવે આપણે સૌ વંદે માતરમ માટે ઉભા થઈશું અને વંદે માતરમની પૂર્ણાહુતિ સાથે જ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ. Thank you.